Hello guys, I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I'm back with the next video of PRMO 2020 solutions guys. So far we have done first three questions and in today's video we are going to see the fourth question of PRMO 2020 and as you'll see it is quite an easy one. Okay, थोड़ा easy question है, बहुत काफी easy है, मतलब rather आप देखना geometry पे based है. Okay, rather rest of the things I'll tell you alongside the question. Okay, so just solve the question alongside guys so that it will help you the most, right? That is very important. Okay, all right guys, without wasting any time, let's see. And guys, just in the meantime, I'll just be very grateful अगर आप guys आप जो आपके friends हैं जो IOKM या pre-RMO का preparation कर रहे हैं, so if they will be if you recommend our channel to them, it will be very great for us. Okay, so that it will motivate us कि और videos हम ऐसे लेके आ सकें आपके benefit के लिए. Okay, all right, let's see guys. The question says let ABCD be a rectangle. Okay, rectangle draw कर लेते हैं guys. Okay, ABCD. Okay, this is given to us. तो guys AB plus BC plus CD इसकी वैल्यू 20 दी हुई है. तो guys एक काम करते हैं, let's say this is X, okay, and this is also X. इसको 2y मान लेते हैं. This is also 2y. I'll tell you why we have taken this as 2y. You might be thinking क्योंकि उसका रीजन अब आगे वाले पोर्शन में है. And it is given that guys AE is 9. AE is 9 where E is the midpoint of BC. तो गाइज BC का मिड पॉइंट है E, सो दैट्स वाई मैंने इसको 2y लिख लिया. सो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहेगा, दैट्स वाई. सो द अपर पार्ट इज y और यू कैन से A और B ले लेते हैं, थोड़ा इजी बन लगेगा आपको. सो दिस इज A और L और B लिख लेते हैं. यू आर जनरली यूज्ड टू इन दैट, राइट? सो AB इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, सो लेट्स टेक इट एज 2B. तो दिस इज B, दिस इज B, राइट? फाइन. एंड इसको ज्वाइन कर दिया गाइज AE को. इसकी लेंथ हमें कितनी पता है? 9 है. सो गाइज व्हाट ऑल डू वी नो? AB plus BC plus CD. So what is that? L plus 2B plus L is 20. So that gives you 2 times L plus B is equal to 20. And that will give us L plus B equal to 10. तो एक रिलेशन तो गाइज हमारे पास ये आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ एक रिलेशन आ गया हमारे पास L और B में. द अदर रिलेशन इज फ्रॉम Pythagoras theorem in this small triangle, right? So guys, what do we know? L square plus B square is 9 square and just put it. B को substitute कर देते हैं guys. L square plus 10 minus L का square equal to 9 square. So let's see guys, expand करने पे क्या मिलेगा हमें? So left side पे 2L square minus 20L plus 100 equal to 9 square is 81, right? तो गाइस जस्ट सॉल्विंग है, मतलब इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? सो दिस विल गिव अस 2L स्क्वायर माइनस 20L माइनस प्लस 19 रादर. ओके, 100 प्लस माइनस 81 होगा तो प्लस 19. सो गाइस वी हैव टू फॉर्म फैक्टर्स ऑफ 19 into 2 38 के फैक्टर्स बनाने. सो देयर सम इज 20, राइट? जस्ट अ सेकेंड, राइट? All right, so let's see 19 into 2. See guys, अब देखो गाइस फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना. यू कैन सी इट हियर कि इतने इजीली आपको नहीं मिल पाएंगे. सो लेट्स सी, मे बी कुछ इसमें डिफरेंट बनता हो, बट दिस इज एनीवेज यूजफुल. क्या पता कोई और फॉर्मेट बनती हो इसमें एरिया के लिए, है ना? सो लेट इट बी लाइक दिस. लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन, राइट? एक बार के लिए क्या करते हैं ना, अभी इसको छोड़ो यहाँ पे एंड जस्ट ट्राई टू राइट द एक्सप्रेशन. हमें चाहिए क्या? तो गाइज व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज L into 2B, isn't it? L into 2B है ना हाइट. ये चीज का ध्यान रखना गाइस, कई बार क्या होता है L आ गया आप L into B करके लिख दो, कहीं गलत नहीं करना ऐसा, है ना? L into 2B. So L into 2 times B की वैल्यू कितनी है गाइस? What is the value of B? 10 minus L. So if we open it, we get 20L minus 2L square. So you see guys, मैंने तभी देखा था कि क्या पता उसका यूज हो जाए. देखो, now you are getting 20L minus L square 2L square directly. If we rearrange it, we are getting, उसको राइट साइड ले जाते हैं,
20L माइनस 2L स्क्वायर का वैल्यू जो है गाइस क्या मिलेगा आपको 19, राइट? आई एम सॉरी अबाउट द रेल ट्रेन नॉइज गाइस, आई एम सॉरी अबाउट इट, ओके, डोंट माइंड इट। ओके, सो 20L माइनस 2L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही गाइस? 19 है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट इटसेल्फ, राइट? सो द आंसर इज सिंपल 19। तो वो एक्सप्रेशन ही वैसा क्रिएट हो गया, यू डोंट गेट कि इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो पा रही। सो अगर ऐसा हो भी ना गाइस, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द, मतलब आगे का स्टेप लिखो एक बार, उसको एक बार छोड़ दो, क्या पता उसके रूट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें नहीं फंसना है कि उसके रूट निकालने बैठ गए, राइट? सो जस्ट ट्राई टू राइट द एरियाज एक्सप्रेशन एंड विल सी कि वो 19 आ गया, एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन क्रिएट हो जा रहा है। सो गाइस द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 19, राइट? सो सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपके पॉकेट में है इसके साथ। सो गाइज ये क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि कुछ मुश्किल चाहिए, मतलब यू कैन ऑलरेडी 8-9 क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसको। ऑल यू नीड टू नो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, और तो कुछ किया ही नहीं हमने, रेस्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग, राइट? सो क्वाइट एन इजी वन इफ यू सी, बट यस बच्चे इसमें ट्रिक हो सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक बन गया तो उसके रूट्स तो आ नहीं रहे, दे माइट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम की भाई जनरली ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, राइट? बट यस, if such a thing is happening, try for writing the area, एक बार उसको आगे बढ़ जाओ, keep confidence in yourself and move forward कि एरिया का एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं, and what you'll observe is कि वो सेम आ जाएगा। ओके, ऑल राइट गाइज, सो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, राइट? ऑल राइट गाइज, सो आई होप आप सबको मजा आया ये क्वेश्चन करने में, यू गाइज गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। ऑल राइट, सो keep practicing guys, all the best for the upcoming exam and keep on practicing. We'll see you in the next video with the 5th question. Okay, all right, all the best guys, take care, bye bye.